کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں کے حکم نامے پر عمل درآمد کا فیصلہ کر لیا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے لیگل ٹیم کو ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ ترجمان کے مطابق الیکشن کمیشن دباؤ کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے آئین اور قانون کے مطابق کام کرتا رہے گا۔ چیف الیکشن کمشنر اور دیگر ارکان کے استعفے کا مطالبہ مذاکرہ خیز ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اسلام آباد سے ٹیلی فون لائن پر موجود اپنے چیف رپورٹر عمر اویس گردیزی سے۔ جی عمر، بتائیے گا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے مزید کیا فیصلہ کیا گیا ہے؟ جی بالکل، الیکشن کمیشن کا کل اور آج سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کے سلسلے میں اجلاس ہوا۔ اجلاس میں الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلہ پر عمل درآمد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تاہم الیکشن کمیشن کی لیگل ٹیم کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کے کسی پوائنٹ پر عمل درآمد میں رکاوٹ ہے تو فوری طور پر آئیڈینٹیفائی کریں تاکہ مزید رہنمائی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا جا سکے۔ مزید ایک سیاسی پارٹی کی طرف سے چیف الیکشن کمیشنر اور ممبران الیکشن کمیشن کو مسلسل اور بیجا تنقید کا نشانہ بنانے پر کمیشن میں اس کی شدید مذمت بھی کی گئی اور اسے مسترد کیا گیا ہے۔ کمیشن سے استعفے کا مطالبہ مذاکرہ خیز قرار دے دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ کمیشن کسی قسم کے دباؤ کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے آئین اور قانون کے مطابق اپنا کام کرتا رہے گا۔ الیکشن کمیشن نے کسی فیصلے کی غلط تشریح نہیں کی، یہ کہنا تھا ترجمان الیکشن کمیشن کا۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو درست قرار نہیں دیا، جس کے خلاف پی ٹی آئی مختلف فورم پر گئی اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کو اپ ہولڈ کیا گیا۔ چونکہ پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی الیکشن ویلڈ نہیں کرائے تھے، جس کے لاجیکل کانسنسس میں الیکشن ایکٹ کی دفعہ 215 کے تحت بیٹ کا نشان وڈرا کیا گیا تھا، لہذا الیکشن کمیشن پر الزام تراشی جو ہے انتہائی غیر مناسب ہے۔ الیکشن کمیشن نے یہ بھی کہا کہ جن 29 ایم این اے کو پی ٹی آئی کا ایم این اے قرار دیا گیا ہے، انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی میں پی ٹی آئی سے اپنی ایفیلیشن ظاہر کی تھی، جبکہ کسی بھی پارٹی کا امیدوار ہونے کے لیے پارٹی ٹکٹ اور ڈکلیریشن ریٹرننگ آفیسر کے پاس جمع کروانا ضروری ہوتا ہے، جو کہ ان امیدواروں نے جمع نہیں کرایا تھا۔ لہذا ریٹرننگ افسروں کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ ان کو پی ٹی آئی کو امیدوار ڈکلیئر کرتے۔ جن 41 امیدواروں کو آزاد ڈکلیئر کیا گیا ہے، انہوں نے نہ تو اپنے کاغذات نامزدگی میں پاکستان تحریک انصاف کا ذکر کیا، نہ پارٹی کی ایفیلیشن ظاہر کیا، نہ کسی پارٹی کا ٹکٹ جمع کروایا ہے۔ لہذا انہوں نے کہا کہ ریٹرننگ افسروں نے ان کو آزاد حیثیت میں الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دی تھی۔ الیکشن جیتنے کے بعد قانون کے تحت 3 دن کے اندر ایم این ایز نے رضاکارانہ طور پر سنی اطاعت کونسل میں شمولیت اختیار کی۔ سپریم کورٹ میں سنی اطاعت کونسل الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل میں پی ٹی آئی اور جو ہے سنی اطاعت کونسل، یہ اپیل اس وقت مسترد کر دی گئی تھی۔ پی ٹی آئی اس کیس میں نہ تو الیکشن کمیشن میں پارٹی تھی اور نہ ہی پشاور ہائی کورٹ کے سامنے پارٹی تھی اور نہ ہی سپریم کورٹ میں پارٹی تھی، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ جو نشستیں ہیں وہ دے دی گئی ہیں۔ جی جی ٹھیک ہے عمر، بہت شکریہ، آپ تفصیلاً ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ جلال پور پیروالا اہل حدیث یوتھ فورس کا انتخابی اجلاس۔ امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث جلال پور سیٹ محمد اسماعیل خواجہ اور مولانا عبداللہ قریشی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ الیکشن کمیشن مولانا عبدالقیوم سلفی کی نگرانی میں انتخابات کروائے گئے۔ شفاف انتخابات کروا کر مرکز کو رپورٹ کیا گیا۔ اس موقع پر اراکین شورا کا کہنا تھا کہ گزشتہ 3 سال میں منتخب کیے گئے صدر اور جنرل سیکرٹری نے اپنی زبردست کارکردگی دکھائی، جس کی بنا پر آج ایک بار پھر آئندہ کے 3 سالوں کے لیے شورا نے حافظ سمیع اللہ ثاقب کو بلا مقابلہ صدر اور مولانا عبدالشکور کو جنرل سیکرٹری منتخب کیا۔ خبر شامل کریں لیا سے۔ آپ کو بتائیں کہ دریائی کٹاؤ متاثرین حکومتی اقدامات نہ ہونے پر سراپا احتجاج بن گئے ہیں۔ مظاہرین نے پہاڑپور کے مقام پر لیا کوٹ ادو روڈ بلاک کر کے حکومت کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ دریائی کٹاؤ سے سینکڑوں ایکڑ اراضی دریائے بڈھ جبکہ کئی انسانی بستیاں صفحہ ہستی سے مٹ گئی ہیں۔ دریائی کٹاؤ سے تنگ متاثرین نے احتجاجاً پہاڑپور کے مقام پر لیا کوٹ ادو روڈ بند کر دی۔ سڑک بند ہونے سے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ممبران اسمبلی آئے، ڈپٹی کمشنر نے دورے کیے، مگر کٹاؤ روکنے کے لیے کچھ نہ کیا۔ ایم این اے نوابزادہ میر منور علی خان تالپور کے فریضہ حج ادائیگی کے بعد چیئرمین حاجی محمد علی کی جانب سے پرتکلف عشائیے کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر چیئرمین حاجی محمد علی کے صاحبزادے حسنین راجپوت نے مہمانوں کو سندھ کا ثقافتی تحفہ لوئی پیش کی اور فریضہ حج کی ادائیگی پر مبارکباد دی۔ اس موقع پر چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل نوابزادہ میر انور علی خان تالپور، میر اللہ داد خان تالپور، میر غزنی خان تالپور، میر حسن دھوکائی، عبدالسلام میمن، محمد حنیف میمن، میر علی رضا تالپور، رمیش کمار مالی نے شرکت کی۔
और अभी आपको बताएं कि सीईओ वाटर कारपोरेशन इंजीनियर सैयद सलाहुद्दीन अहमद का बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर सारा मोनी के हमरा 0 पॉइंट हब केनाल और हब पंपिंग स्टेशन का दौरा। बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर ने 0 पॉइंट हब केनाल और हब पंपिंग स्टेशन का मुआयना भी किया। तर्जुमान के मुताबिक ईओ वाटर कारपोरेशन ने बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर को ब्रीफिंग दी। कहा कराची शहर में इजाफी पानी के लिए सिंध हुकूमत के ताउन से नए हब केनाल की तामीर और पुराने हब केनाल की बहाली का मंसूबा शुरू किया जा रहा है। सीईओ वाटर कारपोरेशन इंजीनियर सैयद सलाहुद्दीन अहमद ने बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर सारा मोनी से मुलाकात भी की। दो तरफा ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के शोबों बिलशमूल तजुर्बात के तबादले, सरसब्ज माहौल के इकदाम, तकनीकी सलाहियत में इजाफे और पानी के शोबे में बैनुल-अक़वामी कंपनियों की शमूलियत का इरादा भी ज़ेर बहस आया। सीईओ वाटर कारपोरेशन ने बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर को आने वाले सालों में कारपोरेशन की हालिया इस्लाहात, बहाली और वियन के बारे में आगाह किया। बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर ने डमनोटी समेत वाटर कारपोरेशन की दीगर तनसीबात का दौरा करने की ख्वाहिश का इजहार किया। सांगल बाईपास के करीब जराई जमीन से अगवा होने वाला साबिक एमएनए का भतीजा रिहा होकर घर पहुंच गया। 5 मुसल्लह अफराद ने मुझे अगवा करके आंखों पर पट्टी बांधी, कई घंटों बाद आजाद किया। रियाज नज़ामानी का कहना था कि मुतालबा बड़ों की मुशावरत के बाद बताऊंगा। रिहाई की इत्तला मिलते ही नज़ामानी हाउस पर सैकड़ों की तादाद में हुर जमात, दोस्त और अहबाब पहुंच गए। खबर शामिल करें कोयटा से। आपको बताएं कि सूबाई वजीर खुराक बलोचिस्तान हाजी नूर मोहम्मद खान दोमर ने की जानिब से उसातिज़ा की जारी करदा मेरिट लिस्ट पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए कहा गया है कि वज़ीर आला बलोचिस्तान और महकमा तालीम के आला हुकाम से फौरी तौर पर नोटिस लेने और मेरिट की पामाली को रोकने का मुतालबा किया गया है। उसातिज़ा की जारी करदा रिजल्ट इत्मीनान बख्श नहीं है, कमेटी बनाकर इंक्वायरी की जाए। वज़ीर आला बलोचिस्तान सूबाई कबीना अहले उम्मीदवारों की आवाज़ पर तवज्जो दें। सूबाई वजीर हाजी नूर मोहम्मद खान दमन ने रिजल्ट के जारी होने के बाद सोशल मीडिया पर मेरिट की पामाली पर साइलिन के आवाज़ का नोटिस लेते हुए हुकाम बाला बिलखसूस वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी महकमा तालीम के आला हुकाम से मुतालबा किया है कि वो हालिया टीचिंग रिजल्ट में होने वाली बेकायदगियों और मेरिट की पामाली का नोटिस ले। रिजल्ट से वालिदैन और उम्मीदवारान मुतमईन नहीं हैं। जतोई के नवाही इलाके बीट दरियाई में 1984 में कायम की जाने वाली पुलिस चौकी कई सालों से खंडरात का मंजर पेश करने लगी और अहले इलाका का कहना है कि इलाके में आए रोज चोरियां डकैतियां अरूज पर हैं और कार्रवाई के लिए 50 किलोमीटर दूर सफर करके थाना बीट मीर हजारा खान जाना पड़ता है। और अहले इलाका ने पुलिस चौकी की बहाली के लिए एहतजाज किया और कहा कि पुलिस चौकी बीट दरियाई की इमारत के दरवाजे, खिड़कियां और छत का सामान गायब है। हम आईजी पंजाब आरपीओ डेरा गाजी खान डीपीओ मुजफ्फरगढ़ से मुतालबा करते हैं कि पुलिस चौकी बीट दरियाई बहाल किया जाए ताकि चौकी बहाल होने से इलाके में चोरियां डकैतियों को रोका जा सके। मजलिस एहरारुल इस्लाम पाकिस्तान गड़ा मोड़ की जानिब से मदरसा अल अलूम अल इस्लामिया बुखारी में खुतबा जुमा का एहतमाम किया गया। अमीर मजालिस एहरार इस्लाम पाकिस्तान पीर सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी सालिस ने बयान किया। पीर सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने कुरान और हदीस पर अमल पैरा होने और अपनी आखिरत की फिक्र करने और अखलाकियात समेत दीगर मौज़ूआत पर भी रोशनी डाली। इंचार्ज इंतजामी कारी मरवान सलीमी, मोहम्मद इसहाक सलीमी, अताउल मोमिन शाह, कारी महबूब आलम, कारी शुएब उस्मानी और सिविल सोसाइटी के लोग शरीक थे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत महकमा तवानाई का इजलास मंसूबे का प्रपोजल बनाने के लिए वज़ीर तवानाई को हिदायत दी। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो की हिदायत है कि 5 लाख बगैर बिजली वाले घरों को बिजली मुहैया की जाए। 5 अरब रुपए के फंड सोलराइजेशन के लिए मुख्तस हैं। चाहता हूँ कि सोलराइजेशन का नया मनसूबा जल्द से जल्द शुरू हो। महकमा तवानाई की टीम मनसूबा के प्लान को तैयार करने में तेजी लाए। चेयरमैन बिलावल भुट्टो का कम इस्तेमाल वाले सार्फिन को मुफ्त बिजली देने का मनसूबा भी महकमा तवानाई तैयार करे। सोलर होम सिस्टम तकसीम हो या फिर सोलर पार्क लगाया जाए। 6 माइक्रो ग्रिड्स डिविजनल सतह पर कायम किए जाएं। 100 सार्फिन वाले 100 यूनिट इस्तेमाल करते हैं, उनको मुफ्त बिजली दी जाए। वजीर तवानाई नासिर शाह का कहना था कि 2 लाख सोलर पैनल्स तकसीम करके मनसूबे पर काम हो रहा है। महकमा तवानाई मनसूबा मुकम्मल करके वजीर आला को मंजूरी के लिए पेश करेगा। तो दूसरी जानिब वजीर आला सिंध की जेर सदारत महकमा आबपाशी का इजलास भी मुनाकिद हुआ। इजलास में लेफ्ट बैंक आउटफॉल ड्रेन साइफर्स की तामीर, एयर एलबी और डी स्पाइनल एक्सपी रेगुलेटरी के हवाले से ब्रीफिंग की गई। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि एलबीओ डी साइफिन्स का इफ्तिताह जल्द करूंगा। एलबीओ डी बहुत अहम मंसूबा है। एलबीओ डी सिस्टम 125 mm मार्च का पानी 48 घंटों में निकासी करने की सलाहियत रखता है।
LBOD के साइफर्स और रेगुलेटर सिस्टम से फायदा होगा। जल्द LBOD स्पाइडल स्केप रेगुलेटर और साइफर्स का इफ्तिताह करूंगा। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि मेयर हैदराबाद काशिफ अली शोरो ने हैदराबाद में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का नोटिस लेते हुए हेस्को के सीईओ से मुलाकात की है। मसाइल के हल पर तबादला ख्याल किया गया। मेयर हैदराबाद ने बातचीत करते हुए कहा कि इस वक्त हैदराबाद में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है और ऐसे मौका पर हेस्को की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग अवाम उन्नास के साथ किसी ज्यादती से कम नहीं है। शहरियों को बिजली की अदम फराहमी के मसाइल मेयर सेक्रेटेरिएट में रोजाना की बुनियाद पर आ रहे हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि अवाम को बर वक्त बिजली की सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए इन मसाइल का तदारुक किया जाए। जबकि मेयर हैदराबाद ने हैदराबाद वाटर एंड सीवरेज कारपोरेशन के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को एक्सप्रेस फीडर से सर्विस फराहम करने पर भी गुफ्तगू की। कसूर शहर और गिरदो नवाब में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम खुशगवार, गर्मी का जोर टूट गया। हफ्स और लोड शेडिंग के सताए शहरियों के चेहरे खिल उठे। शदीद गर्मी के मौसम में बारिश अल्लाह ताला की रहमत है। कोर्ट फीस 200 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए करने पर पंजाब भर की तरह कमालियाबाद में भी मुकम्मल हड़ताल की गई। कोई भी वकील अदालतों में पेश ना हुआ। मजीद जानते हैं कमालिया से आरजे जावेद भट्टी की इस रिपोर्ट में। से कोर्ट फीस टिकट की कीमत में 500 गुना इजाफा कर दिया है। नई कीमतों के मुताबिक 1 रुपए का कोर्ट फीस टिकट 200 रुपए, जबकि 2 रुपए का कोर्ट फीस टिकट 500 रुपए का हो गया। कोर्ट फीस टिकट की कीमतों को फाइनेंस एक्ट 2024 में शामिल किया गया है। कोर्ट फीस टिकट की कीमतों में इजाफे पर वकला और दरखास्त गुजार परेशान है। इस हवाले से वकला का कहना है, कमालियाबाद कोर्ट फीस एक्ट में तरमीम पे मुकम्मल हड़ताल पे है और हम पुरजोर मुतालबा करते हैं कि ये जो कोर्ट फीस एक्ट में तरमीम की गई है इनको फिल फॉर वापस ले जाए। साइलिन पहले ही बहुत परेशान है, ऊपर से महंगाई का बहुत बोझ है। वकला आज सरापा एहतजाज है। कोर्ट फीस में जो इजाफा किया गया ये बिल्कुल गैर कानूनी इकदाम है और इंसाफ चूँकि हुकूमत का ऐन फ़र्ज़ है कि वो लोगों को दहलीज तक और सस्ता इंसाफ मुहैया किया जाना चाहिए। कोर्ट फीस टिकट की कीमतों में इजाफे का बोझ दरखास्त गुजारों पर पड़ेगा। कोर्ट फीस टिकट डुप्लीकेट फॉर्म, समन और दीगर कानूनी मामलात में वकला इस्तेमाल करते हैं। वकला का कहना था कि अब फॉर्म की एक सफ़े की कापी हासिल करने के लिए 500 रुपए मालियत का टिकट लिया जाएगा। अगर केस में दरखास्त दायर करने पर साइल को 500 रुपए का टिकट चस्पा करना होगा। जबकि पाकिस्तान का आइन वाज़ेह है कि इंसाफ जल्द दहलीज पर सस्ते दामों पहुंचाना है। वकला और दरखास्त गुजारों ने कोर्ट फीस टिकट की कीमतों में इजाफे के हुकूमती फैसले। अफसोसनाक खबर शामिल करें। आपको बताएं कि चक झुमरा में शोहर से तल्ख कलामी पर दिल बर्दाश्ता होकर 18 साल लड़की ने खुदकुशी कर ली। वाक़या गांव चक नंबर 191 आर बे में पेश आया है, जहां 18 साल खालदा ने शोहर से मामूली तल्ख कलामी पर जहरीली गोलियां खाकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। खालदा की शादी अपने ही गाँव के अली शेर से हुई थी। पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट के बाद लाश वर्सा के हवाले कर दी। खबर शामिल करें पेशावर से। आपको बताएं कि CCPO पेशावर कासिम अली खान और SSP ऑपरेशन काशिफ जुल्फिकार के अहकामात पर जिला भर में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ मौसर हिकमत अमली के तहत क्रैकडाउन जारी है। DSP यकातू तौहीद खान और SHO थाना भारी मारी उमर अफरीदी ने कामयाब कार्रवाई के दौरान मुनज़्ज़म मोटरसाइकिल लिफ्टर्स गैंग को बेनकाब कर लिया। मुनज़्ज़म गैंग के 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। मुल्ज़िमान में रिजवान, इजहार और इकराम शामिल हैं। कब्जे से 16 मोटरसाइकिलें बरामद। मुल्ज़िमान ने इब्तदाई तफ्तीश के दौरान मोटरसाइकिल औने पौने दामों फरोख्त करने का एतराफ़ कर लिया। दीगर मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए खसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। पुलिस का कहना है कि अमन अमान के क़याम और जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार अली अमीन खान गंडापुर की ज़ेर सदारत महकमा आबपाशी का इजलास CRBC मेन केनाल को वापडा से सूबाई हुकूमत के हवाले करने से मुतालिक मामूलात का जायजा लिया। वज़ीर आला की मुतालिका हुकाम को इस सिलसिले में काबिल अमल तजावीज़ तैयार करने की हिदायत। अली अमीन गंडापुर का कहना था कि CRBC को सैलाबों से महफूज बनाने के लिए प्रोटेक्शन वर्क जरूरी है। सूबाई हुकूमत प्रोटेक्शन वर्क के लिए 62 मिलियन रुपए के फंड्स की मंजूरी दे चुकी है। वज़ीर आला ने CRBC मेन केनाल की बहाली और भल सफाई के लिए भी इकदाम की हिदायत की।
वजीर आला का कहना था कि सूबाई हुकूमत इस मकसद के लिए दरकार तमाम फंड्स तरजीही बुनियादों पर फराहम करेगी। इजलास को तकमील के करीब स्मॉल डैम के हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई। वजीर आला की तकमील के करीब डैमों के लिए तमाम फंड्स फौरी तौर पर फराहम करने की हिदायत। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि इस मकसद के लिए दरकार फंड्स तरजीही बुनियादों पर फराहम किए जाएंगे। मुल्क इस वक्त सख्त मौशी मसाइल में घिरा हुआ है। पाकिस्तान इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन के चेयरमैन फहीम रहमान सहगल ने कहा कि ताजिर और कारोबारी बरादरी प्याफ फाउंडर अलायंस तर्जुमान है। लाहौर चैम्बर के इलेक्शन में इंशाल्लाह कामयाबी हासिल करेंगे। इस वक्त हमारे सीनियर रिपोर्टर अली फारूक फहीम रहमान सहगल के हमरा मौजूद हैं। मजीद उनसे जान लेते हैं। जी अली, अपडेट कीजिएगा। मैं दरोगावाला की तरफ से जो एसोसिएशन की तरफ से जो रिसेप्शन दिया गया प्याफ को, हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन प्याफ, उनसे बात करेंगे। इलेक्शन की गर्मा गर्मी जारी है। जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो प्याफ का काफिला दवा माशाल्लाह रवां दवा है। आज इसकी मंजिल जो थी वो दरोगावाला इंडस्ट्रियल एसोसिएशन थी। उनके सारे मेंबरान माशाल्लाह हमारे उनके जो पायनियर मेंबर हैं उनके साहबजादे यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पे शबान अख्तर साहब ने एक बहुत बड़ी गैदरिंग, और गैदरिंग भी ये वो लोग थे जो एसोसिएट और कॉरपोरेट क्लास के वोटर्स हैं। इसमें पापाम की एक कसीर तादाद मौजूद थी और दीगर जो मुल्हका इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के लोगों ने यहाँ भरपूर तादाद में शिरकत की है और इस अज़्म का इजहार किया है कि गुज़श्ता सालों की तरह जिस तरह 22 साल से प्याफ फाउंडर अलायंस को ये कामयाबी से हमकनार कर रहे हैं, अगले साल भी जो आने वाला जो इलेक्शन है ये कमिंग सितंबर में, तो इंशाल्लाह ये लोग वहाँ आएंगे और हमारी कामयाबी को इंशाल्लाह वहाँ पे इंडोर्स करेंगे। मैंने आपकी फंक्शंस भी देखे हैं, बड़े कमिटेड किस्म के लोग आ रहे हैं, इधर वोटर्स भी हैं, इधर भी 200-300 के करीब वोटर्स मौजूद हैं। और सर ये इत्तेहाद भी आगे हो सकता है कि जो प्याफ का है वो आपस में जो गलत फहमियाँ वो शायद दूर हो जाएँ। देखें जी, हमारा एक अज़्म है पाकिस्तान की जो इकोनॉमी की और पाकिस्तान की जो बिज़नेस कम्युनिटी है और जो पाकिस्तान के लोग हैं, इनकी इकोनॉमी को ठीक किया जाए। हमारा जो मुल्क है उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है ग्रोथ का, और जो हमारे पास जितने भी अपने नेचुरल रिसोर्सेज हैं हम उनको इस्तेमाल करते हुए अपने मुल्क को तरक्की की राह पे गामज़न कर सकते हैं। ये हमारा एजेंडा है और इस एजेंडे में हमारे साथ किसी ने में हमारे साथ मिलना है। हमारे दरवाजे, इवन कि हमारे दिलों के दरवाजे भी उनके लिए खुले हैं। जी उन्होंने कहा जी दिलों के भी दरवाजे खुले हैं। हमारा एजेंडा पाकिस्तान की तरक्की और तमीर करना है और उम्मीद करते हैं कि ये प्याफ का अगर कोई गलतफहमियां हैं ग्रुप की। लाहौर में डेंगू की रोकथाम के लिए इंसदादे डेंगू कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 1074 नोटिस, 58 मुकदमात का इंदराज, 23,368 हॉटस्पॉट को कवर किया गया। डीसी लाहौर राफिया हैदर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर ने फील्ड में सरप्राइज दौरे किए। रिपोर्ट कर रहे हैं जुनेद अशरफ। शहर लाहौर में बारिशी सूरत हाल के पेश नजर 1132 मकामात से डेंगू लार्वा तल्फ किया गया। गुज़िश्ता 24 घंटों में 1074 नोटिस, 58 मुकदमात का इंदराज, 23,368 हॉटस्पॉट्स को कवर किया गया। रवा साल में अब तक 24,922 नोटिस जारी किए गए, 603 मुकदमात का इंदराज भी करवाया गया। डीसी लाहौर राफिया हैदर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर्स ने फील्ड में सरप्राइज दौरे किए। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट नबील मेमर ने हबीब रोड लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड पर डेंगू टीमों के काम का मुआयना किया। दौरान चेकिंग एक घर से डेंगू लार्वा बरामद करके तल्फ किया गया। डेंगू स्प्रे भी करवाया गया। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट ने एरिया इंचार्ज को घरों के बाहर डोर मार्किंग यकीनी बनाने की हिदायत की। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार अनम फातमा ने यूसी 52 बनावा कोट धोनी चांद वागा जोन में डेंगू सर्विलेंस का जायजा लिया। 5 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद करके मौका पर तल्फ किया गया और डेंगू स्प्रे भी करवाया गया। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार ने यूसीएमओ को डेंगू टीमों का जायजा लेने की हिदायत की। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार ने डीडीएचओ को डेंगू टीमों की फील्ड में बर वक्त हाजिरी यकीनी बनाने की भी हिदायत की। डीसी लाहौर राफिया हैदर का कहना है कि डेंगू टीमें बारिशों के सबब फील्ड में मुतहरिक हैं। इंडोर और आउटडोर डेंगू सर्विलेंस का तरजीही बुनियादों पर जायजा लिया जा रहा है। डेंगू लार्वा के खात्मे को यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल बरोएकार लाए जा रहे हैं। कैमरा टीम के हमरा जुनेद अशरफ, कोहिनूर न्यूज़, लाहौर। एडमिनिस्ट्रेटर लारी अड्डा की जेर निगरानी चलने वाले बस अड्डों में चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नाकिस गैस सिलेंडर मुसाफिरों की जिंदगियों के लिए खतरा बन गए। बदामी बाग लारी अड्डा, जिना बस टर्मिनल, सिटी अड्डा और दीगर बस स्टैंड एडमिनिस्ट्रेटर लारी अड्डा की निगरानी में चल रहे हैं। वैगनों में नाकिस सिलेंडर लगी ट्रांसपोर्ट मुसाफिरों के लिए किसी भी हादसे का सबब बन सकती है।
ایڈمنسٹریٹر لاری اڈا کی ناقص پالیسیوں سے جہاں مسافروں کو پریشانی کا سامنا ہے، وہیں پر انتظامیہ کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ کمشنر لاہور، ڈپٹی کمشنر اور وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان اس پر فوری نوٹس لیں۔ ڈاکٹرز کی بھرتی کے لیے تحریری ٹیسٹ کا معاملہ، پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری پروفیسر شاہد ملک کا کہنا ہے کہ ڈاکٹرز کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے باوجود تحریری انٹرویو دینے کے بارے میں جانتے ہیں ہمارے نمائندے سید آصف الیاس سے، جو موجود ہیں پی ایم اے کے جنرل سیکرٹری پروفیسر ڈاکٹر شاہد ملک کے ساتھ۔ جی شاہد، بتائیے گا۔ جی، اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری شاہد ملک صاحب ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ نے ڈاکٹر کی بھرتی کے لیے جو تحریری ٹیسٹ کا انعقاد کیا، اس کے بارے میں۔ جی السلام علیکم سر۔ السلام جی۔ سر، پنجاب گورنمنٹ نے جو ڈاکٹرس کے لیے گورنمنٹ کے لیے تحریری کا انعقاد کیا، اس کے بارے میں۔ دیکھیں، پنجاب جو ہے نا پبلک سروس کمیشن، یہ اس کا ڈومین ہے۔ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ تو صرف پوسٹیں لکھ کے بھیج دیتا ہے کہ ہماری اتنی پوسٹیں ہیں، ان کو ریکروٹ کر دیجیے۔ ریکروٹمنٹ پروسیس کے اندر یہ پہلے ایک مرتبہ انہوں نے ٹیسٹ اناؤنس کیا تھا، تو اس کے لیے کافی پروٹیسٹ ہوا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ڈاکٹروں کے اتنے ایگزام دیے، فلاں دیے، تو اس کے لیے جو تھا جسے کہتے تھے کہ ایکیڈیمک گرلنگ آپ کر لیتے ہیں، بلڈ لائن اس کو کہتے ہیں۔ یہ ہر پروفیشنل کے نمبر ان کے اتنے پرسنٹ، اتنے پرسنٹ، اتنے پرسنٹ، اتنے پرسنٹ۔ تو انہیں کہا گیا کہ ہم نے اس وقت بھی یہ پروٹیسٹ ہوا تھا لوگوں کا، تو ڈاکٹر ریکروٹ ہوئے، انٹرویو، پھر یہ انٹرویو چلتے رہے۔ اس وقت ایشو شاہ صاحب یہ ہے کہ ڈاکٹروں کی پروڈکشن بہت زیادہ ہو گئی ہے اور گورنمنٹ کے پاس کوئی پلان نہیں ہے۔ یہ 4 سال بعد 900 پوسٹیں نکلی ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی، اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت شاید ایک پوسٹ کے اوپر 30 بندے آئیں، جو مجھے ابھی تک پتا چلا تقریباً 18,000 بندہ ان 900 پوسٹوں کے اوپر بچہ اپیئر ہوگا۔ اور مجھے بتائیں کہ اگر 18,000 ریکروٹ کرنے ہیں انہوں نے، تو پھر تو تقریباً 40-50 ممبر بیٹھے اور سارا انٹرویو لیتے رہے۔ اب انہوں نے ایک سوچا اس مرتبہ کہ 100 مارک کا ایم سی کیوز، تھوڑا سا جنرل نالج، ان کا ایک اصول بنایا انہوں نے کہ ایک شیٹ کے پیچھے زیادہ سے زیادہ وہ 10 بندے لیں گے۔ 10 بندے یعنی 10 بندے، ایک 900 بندہ ہے تو ایک اور بڑھا لیجئے، تو یہ 9,000 کو انٹرویو کر لیں۔ اس وقت صورتحال بڑی گمبھیر ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جتنے میڈیکل کالج بنا دیا اس حکومت نے وفاق کے اندر، 200 میڈیکل کالج، 25,000 ڈاکٹر سالانہ پروڈیوس ہو رہے ہیں، اور بے روزگاری کی وہ انتہا ہے کہ ان 900 پوسٹوں کے اوپر مجھے یہ نہ سمجھے کہ میں ان کا وکیل ہوں، مگر وہ بھی مجبور ہیں، اور ڈاکٹروں کے لیے اس وقت ہیلتھ سیکٹر بربادی کے کنارے پہنچ گیا اور حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے۔ جی، جیسا کہ پی ایم اے کے جنرل سیکرٹری پروفیسر شاہد ملک کا کہنا تھا، حکومت کی جانب سے انارکی پھیلانے کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی نیا اقدام نہیں۔ کراچی بس ریپڈ ٹرانزٹ ریڈ لائن منصوبے پر کام تیز رفتاری سے جاری ہے تاکہ کراچی کے لوگوں کی ضروریات کو جلد از جلد پورا کیا جا سکے۔ صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن، سیکرٹری ٹرانسپورٹ اسد ضامن اور سی او ٹرانس کراچی شمائلہ محسن کی رہنمائی میں اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ اس میگا پروجیکٹ کو جلد مکمل کیا جائے۔ یہ اپنی نوعیت کا پہلا منفرد شہری منصوبہ ہے جو شہری نقل و حمل، ماحولیات اور شہری منصوبہ بندی کے لیے گیم چینجر بننے کی طرف گامزن ہے۔ منصوبہ مکمل ہونے پر کراچی بی آر ٹی ریڈ لائن کراچی کے 1.5 ملین افراد کو براہ راست مستفید کرے گا، اور توقع ہے کہ اس پروجیکٹ کی بدولت روزانہ 3.5 لاکھ مسافروں کی سفری ضروریات کو پورا کیا جا سکے گا۔ اس پروجیکٹ سے کراچی کی سڑکوں پر بوجھ بہت کم ہوگا اور کراچی کے لاکھوں شہری ایک آرام دہ اور محفوظ سفر کا تجربہ حاصل کر سکیں گے۔ اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔